Good morning, dear student. Dear students, today we will take chapter 9, Exploring India. What will you do? You will read this chapter and I will explain exercise A, which is given on page number 84. Tick the correct option. First is Taj Mahal is built on the bank of river and the answer is Yamuna. Okay. Next is Fatehpuri Sikri is built completely with. The right answer is red stone. Fatehpur Sikri is built completely with red stone. Next is Manipur is situated in the dash of India. Manipur is situated in the northeast of India. The right answer is option A, northeast. Next is Loktak Lake is famous for its. Loktak Lake is famous for its orchids. Right. What is the right answer? Right. Option B is the right answer. Fifth one is Vrindavan Garden is located on the terrace of Krishna Raja Sagar Dam across the river. And the right answer is Kaveri. Okay, Vrindavan Garden is located on the terrace of Krishna Raja Sagar Dam across the river Kaveri. Now I will discuss exercise B. Fill in the blanks. First is India is a dash blend of tradition and custom. The right answer is unique. Fine. India is a unique blend of tradition and custom. Next is Agra is located in Dash Pradesh. So, we all know Agra is located in Uttar Pradesh. Third fill in the blanks is the population of Manipur is the mixture of many tribes. The right answer is tribe. The population of Manipur is the mixture of many tribes. Fourth one is Mysore is a historical city of dash. So we all know Mysore is a historical city of Karnataka. Right answer is, what is the right answer? Karnataka is the right answer. Fifth is our historical monument must be dash. Our historical monument must be preserved. What is the right answer? Preserved. Now I will discuss exercise C, which is given on page number 85. Match the following. First is Vrindavan Garden. Where is Vrindavan Garden? It is in Mysore. What is the right answer? C is the right answer, Mysore. Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri is famous for well-planned drainage system. Okay. Next is Floating Park. And Kabul Kamjo National Park is a floating park. Fourth one is Jewels of India. So which state is known as Jewels of India? Manipur. So E is the right answer, Manipur, Jewels of India. Fifth one, Delhi, Agra, Jaipur. Agra, Jaipur is known as Golden Triangle. The right answer is A. So here I have discussed exercise C. Now I will discuss answer briefly. First question is नेम टू ट्रेन बिटवीन आगरा एंड दिल्ली. तो दो ट्रेन्स के नाम बताने हैं जो कि आगरा और दिल्ली के लिए चलती हैं. ठीक है, ताज एक्सप्रेस फर्स्ट इज एंड सेकंड वन इज पैलेस ऑन वे. ठीक है, ताज एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरी कौन सी है? पैलेस ऑन वे. क्वेश्चन नंबर 2, हु बिल्ड द ताजमहल. तो ताजमहल किसने बनाया है? शाहजहाँ ने. राइट आंसर क्या है? शाहजहाँ. नेक्स्ट इज नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया. तो लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है ईस्टर्न इंडिया का, उसका नाम बताना है. वो कौन सा है? लोकतक लेक. ठीक है, ईस्टर्न इंडिया का. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ म्यूजियम. म्यूजियम क्या है? द आंसर इज अ म्यूजियम इज अ बिल्डिंग वेयर कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट आर केप्ट एंड शो टू द पब्लिक. तो म्यूजियम एक बिल्डिंग है जहाँ पर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन होती है और वहाँ रखा जाता है उन्हें, ताकि कौन देख सके? पब्लिक उन्हें वहाँ पर जाकर देख सके. नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन. तो वृंदावन गार्डन का स्पेशल अट्रैक्शन क्या है? एंड आंसर इज द म्यूजिकल फाउंटेन्स आर द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन. जो म्यूजिकल फाउंटेशन है वो फाउंटेन्स हैं, वो क्या है? स्पेशल अट्रैक्शन है वृंदावन गार्डन की.
नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन exercise E. Question number 1. What makes India a favorite destination for tourists? तो इंडिया को फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों माना जाता है? जो टूरिस्ट है वो उन्हें फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों मानते हैं? एंड द आंसर इज इंडिया हैज़ अ यूनिक blend of tradition, custom, religion, and languages, which makes इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। तो इंडिया क्या है, एक यूनिक मिक्सचर है, किसी चीज़ का मिक्सचर है। यूनिक ब्लेंड मीन्स यूनिक जो मिक्सचर होता है किसी चीज़ का, ट्रेडिशन का, कस्टम का, रिलीजन का एंड लैंग्वेजेस का। मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं, कस्टम मिलते हैं, रिलीजन अलग अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। तो ये क्या है, इसलिए जो है जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, इंडिया जो क्या है उनके लिए क्या है, फेवरेट डेस्टिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के 3 फीचर्स बताने हैं इंपॉर्टेंट। एंड आंसर इज 3 इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फतेहपुर सीकरी आर। नंबर 1, द टाउन वॉज बिल्ड इन रेड स्टोन। जो टाउन है रेड स्टोन से बना हुआ है टोटली। नंबर 2, द स्लोपिंग लेवल वर कनेक्टेड विथ टेरेस। स्लोपिंग लेवल है वो किससे कनेक्टेड है, टेरेस से। और वेयर डिफरेंट बिल्डिंग्स आर वर बिल्ड, जहाँ पर डिफरेंट बिल्डिंग बनी हुई है। नंबर 3, द टाउन हैड अ मोस्ट वेल प्लान्ड ड्रेनेज एंड सप्लाई सिस्टम। जो टाउन है वो किससे बना हुआ है, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, और जो वाटर सिस्टम सप्लाई सिस्टम है वो बहुत अच्छा था। ठीक है, वहाँ का इस तरीके से बना हुआ। तो हियर आई हैव डिस्कस 3 फीचर्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो फेमस 2 प्लेसेस है जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन रहते हैं उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट क्या है आंसर में, लोकतक लेक। तो लोकतक लेक है और क्यों फेमस है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया एंड लेक इज़ ऑल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर अ ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑर्चिड। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है नॉर्थ इंडिया का फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पर, और ये अपने ऑर्चिड जो ऑर्चिड्स है उसके लिए भी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज कैबूल लैमजो नेशनल पार्क। तो ये किस लिए फेमस है, इट इज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में एक ही नेशनल फ्लोटिंग पार्क है, वो कौन सा है, कैबूल लैमजो नेशनल पार्क। एंड फेमस फॉर ब्रो एंटलीरेड डियर्स। अब वहाँ पर जो डियर्स हैं, कौन से फेमस डियर्स हैं वहाँ पर, ब्रो एंटलीरेड डियर्स। ठीक है, इसलिए ये फेमस है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, हाईलाइट्स 3 मेन फीचर्स ऑफ द मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस के 3 मेन फीचर्स बताने हैं। द आंसर इज 3 मेन फीचर्स ऑफ द मैसूर पैलेस आर। कौन कौन से हैं वो, फर्स्ट इज इट हैज़ अ यूनिक फ्रेंच क्लॉक। वहाँ पे एक यूनिक फ्रेंच क्लॉक है। नंबर 2, इट हैज़ द रॉयल एलिफेंट थ्रोन कंटेन 84 kg ऑफ गोल्ड। और वहाँ पर एक रॉयल एलिफेंट सिंहासन भी है, थ्रोन जिसको सिंहासन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोन बोलते हैं। और उसमें कितना गोल्ड लगा हुआ है, 84 kg। ठीक है, इट इज़ ट्रेजर ऑफ पेंटिंग एंड ज्वेलरीज। तो वहाँ पर खजाना किसी चीज़ का, बहुत सारी पेंटिंग्स है और वहाँ पर ज्वेलरीज भी हैं। Now question number 6, why are petrol and diesel vehicles not allowed near the Taj Mahal? Answer is diesel or petrol vehicles are not allowed near Taj Mahal to preserve the beauty of the great monument. तो ये पूछने क्वेश्चन में जो बताया कि पेट्रोल और डीजल है वो क्यों नहीं है अलाउ ताजमहल के आसपास। जो व्हीकल्स होते हैं जिनमें पेट्रोल और डीजल यूज़ किया जाता है तो उनको क्यों नहीं अलाउ किया जाता ताजमहल के आसपास। और आंसर है कि पेट्रोल और डीजल की जो व्हीकल्स है इसलिए अलाउ नहीं किए जाते ताजमहल के आसपास, क्योंकि जो उसकी ब्यूटी है मॉन्यूमेंट की उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, मतलब सेफ रखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रोल डज अ वेल प्लान ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्ले इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। तो क्या जो रोल हो सकता है किस चीज़ का, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का, जो कि
टूरिस्ट को और अट्रैक्ट कर सकता है? तो आंसर है अ वेल प्लान्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। तो जो वेल प्लान्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्ले कर सकता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसमें? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में। कैसे? ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है, और क्लासेस के लिए। इट रिड्यूस टाइम एंड मेक द जर्नी कंफर्टेबल। तो एक तो सबसे पहले ये करता है, टाइम को रिड्यूस करता है, ठीक है, सेव करेगा टाइम, और मेक द जर्नी कंफर्टेबल, और जो जर्नी है उसको भी कंफर्टेबल बनाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक वेल प्लान डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना। ये क्या करता है? प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट ऑल of all classes, okay, and it reduce time and make the journey comfortable. Dear student, here I have complete questions of this lesson. What will you do? You will revise all these questions and all this exercise of this chapter. और अपने चैप्टर को भी रीड करना, और इसकी जो मैप स्किल है वो भी आप करेंगे। That's all for the day. Thank you and have a nice day.